K2. So, so the first half of the 20th century witnessed the identification and synthesis of many of the known essential vitamins and minerals, and they are used to prevent and treat deficiency related diseases including scurvy, beriberi. ठीक है, स्कर्वी जो विटामिन सी का डेफिशिएंसी है, ये बेरी, ठीक है, जो है पेलाग्रा, ठीक है, उसके बाद रिकेट्स, xerophthalmia and nutritional anemia. Casimir Funk in 1913 came up with idea of vital amine in food, originating from the observation that the bulk of unprocessed rice protected chickens against a beriberi like condition. So basically जो बेरी है, ठीक है, तो वो विटामिन बी जो है उसका हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी, राइट. सो द वाइटल अमाइन और विटामिन, ठीक है, सो विटामिन जो है, ठीक है, ये वाइटल अमाइंस इस नाम से जो है निकला है, तो उसको विटामिन कहा जाता है. So it was first isolated in 1926 and named thiamine, ठीक है. सो जो विटामिन B1 है उसकी वजह से बेरी जो डिसीज है वो जो है डिस्कवर हुआ था, right, and subsequently synthesized in 1936 as a vitamin B1. Okay, so later on thiamine को vitamin B1 भी कहा गया. In 1932, vitamin C was isolated and definitively documented for the first time to protect against scurvy. Some 200 years after ship's surgeon James Lane tested lemons for treating scurvy in sailors. राइट, तो जो विटामिन सी है तो उसका भी जो है जब कुछ लोग जो है समुद्र के रास्ते जो है सेलर्स जो है, ठीक है, वो आ रहे थे, तभी उनमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो है उनकी कमी होने के कारण, खाना बहुत कम होने के कारण, ठीक है, तो उसमें उसकी वजह से स्कर्वी ये जो है उनको हुआ था वहां पे लोगों को, ठीक है. तो उसके बाद उनके पास जो है लेमन था, ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने टेस्ट किया. आवाज आ रही है? ओके ओके ओके. सो हाँ, तो यहाँ पे सो दिस वाइटल विटामिन vital amine or vitamin was first isolated in 1926 and named thiamine and subsequently synthesized in 1936 as vitamin B. So there was in 1932, vitamin C was isolated and definitively documented for the first time to protect against scurvy. Some 200 years after ship's surgeon James Lind tested lemons for treating scurvy in sailors. तो हिस्ट्री आपको उतना पूछेंगे नहीं, पर पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन जो है वो किसने डिस्कवर किया. So by the mid 20th century, all major vitamins had been isolated and synthesized. Their identification in animal and human studies proved the nutritional basis of serious deficiency diseases and initially led to dietary strategies to tackle beriberi, that is vitamin B1 deficiency, okay, and means thiamine deficiency. Pellagra, vitamin B3 deficiency, right? उसके बाद स्कर्वी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी. एनीमिया यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, राइट, एक तो आयरन की वजह से, ठीक है, और एक विटामिन B12 की वजह से, यानी मेन जो कंपोनेंट रहता है, एक इसमें आयरन रहता है और यहाँ पे जो है विटामिन B12 रहता है. देन रिकेट्स, विटामिन डी एंड अदर डेफिशिएंसी कंडीशन. However, the chemical synthesis of vitamins quickly led to food-based strategies being supplanted by supplement. Sorry, यहाँ पे गलत है.
supplemented by treatment with individual vitamin supplements. The presaged modern day use and marketing of individual and bundled multivitamins to guard against deficiency, launching an entire vitamin supplement industry. This new science of single nutrient deficiency disease also led to fortification of selected staple foods with micronutrients such as iodine in salts and niacin and iron in wheat flour and bread. These approaches proved to be effective at reducing the prevalence of many common deficiency diseases, including goiter, iodine deficiency, xerophthalmia, vitamin A deficiency, rickets, vitamin D deficiency, and anemia, iron deficiency. So foods around the world have since been fortified with calcium, phosphorus, iron, and specific vitamins, that is A, B, C, D, depending on the composition of local staple foods. So जो है मिड 20th सेंचुरी जो है, ठीक है, तो वहां पे मोस्ट ऑफ द विटामिन जो मेजर विटामिन है वो वहां पे आइसोलेट और सिंथेसाइज किए गए, ठीक है। एनिमल स्टडीज और ह्यूमन स्टडीज जो है के साथ में जो भी हम बोल सकते हैं कि उनका रिलेशन क्या है, ठीक है, ह्यूमन से हो या फिर एनिमल से, और उनसे जो है अरे हम बोल सकते हैं कि जो डिसीज है उनसे रिलेटेड जो डिसीज है, ठीक है, सो वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी वेरी वेरी है, ठीक है, तो वो मिड 20th सेंचुरी में वो आइडेंटिफाई कर चुके थे, राइट। तो यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी डिसीज दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक तो बेरी बेरी दिया हुआ है विटामिन B1 दैट इज थायमिन का डेफिशिएंसी, उसके बाद पेलाग्रा है विटामिन B3, ठीक है, उसका डेफिशिएंसी, उसके बाद स्कर्वी विटामिन सी का, पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 का, राइट, जिसको साइनोकोबालमाइन कहते हैं, राइट, और उसके बाद रिकेट्स विटामिन D डेफिशिएंसी एंड अदर डेफिशिएंसी कंडीशन, राइट। तो ये जो विटामिन है इनके जो भी केमिकल सिंथेसिस है, ठीक है, तो ये जो है फूड बेस्ड जो भी स्ट्रेटेजीज है उसको अपना के जो है, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस हुए, राइट, और उसके साथ जो बाद में, ठीक है, जैसे जैसे स्टडीज हुई तो उस तरह से ये विटामिन के जो नेचुरल फॉर्म में मिलते थे, ठीक है, सो आर्टिफिशियल फॉर्म में भी या फिर जो हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्स के फॉर्म में जनरली मिलने लगे, ठीक है। दिस प्रेसेज मॉडर्न डे यूज एंड मार्केटिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड बंडल्ड multivitamins to guard against deficiency, launching an entire vitamin supplement industry, ठीक है। तो ये जो भी हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है, लैटर जैसे जैसे जो है नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे आती गई, ठीक है, इस तरह से ये जो विटामिन नेचुरल फॉर्म में मिलने वाले थे, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्स के थ्रू यानी फोर्टिफाइड वे में जो है हम कह सकते हैं, या फिर जो है पाउडर फॉर्म में जो है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल उसका प्रोडक्शन जो है वो वहां पे होने लगा, होने लगा, ठीक है, क्योंकि जैसे उसका रिलेशन जैसे जैसे लगने लगा कि किसके साथ कौन सी डेफिशिएंसी के साथ उसका रिलेशन है, ठीक है, तो उसी तरह जो नई नई हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज ओपन होते गई, ठीक है, और उसके साथ जो विटामिन सप्लीमेंट्स है उनका प्रोडक्शन जो है हम बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट में वहां पे होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस प्रिसेज मॉडर्न डे, सो प्रिसेज मीन्स यानी हम कह सकते हैं कि यानी वार्निंग के जैसा जो है, यानी हम कह सकते हैं कि एक तो कैसे डिसीज हो इतने इतने क्या बोलते हैं, इतना रेट इतना रिस्क जो था, इतना रेट था डिसीज कंडीशंस का, ठीक है, जैसे एनीमिया हो गया, ठीक है, क्योंकि जनरली माल नरिशमेंट जहाँ पे होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये डिसीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। अभी तो इतना अवेयरनेस आ गया है तो माल नरिशमेंट बहुत कम जगह पे दिखाई देती है, ठीक है, पर वहां पे जहाँ थी तो वहां पे रेट बहुत था, ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो है नई टेक्नोलॉजीज का जो है इजाद हुआ, ठीक है, उसकी वजह से वो हम बोल सकते हैं वो रेट कम करने के लिए जनरली
ये सप्लीमेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका प्रोडक्शन होने लगा, ताकि वो रेट जो है उस रेट को हम वहां पे कम कर सके। ठीक है, सो एक्चुअली ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है जो अरेंज करते हैं, या फिर जैसे सर्वेज वगैरह होती है, वो सर्वेज को ध्यान में रखते हुए, जो रिसर्च होता है उसको ध्यान में रखते हुए जो फर्दर स्टडीज होती है, राइट, तो वहां पे ही पता लगाया जाता है कि किस एरिया में उसका रेट ज्यादा है। ठीक है, तो वहां पे सपोज उन्होंने देखा कि यहाँ पे रेट ज्यादा हो रहा है, राइट, माल नरिशमेंट की वजह से एनीमिक जो है स्कर्वी, ठीक है, इसका रेट ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो प्रोडक्शन बनते गया। ऑब्वियस है ना, जैसी नीड बढ़ेगी, ठीक है, उस तरह से ही प्रोडक्शन वहां पे बढ़ते जाएगा, राइट। तो इस तरह से तो एक ये नया जो है ईरा था, जहाँ पे नए विटामिन जो है एज सप्लीमेंट्स की तरह वहाँ पे जो है मिलने लगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका होने लगा। So this new science of single nutrient deficiency diseases also led to fortification of selected staple foods with micronutrients such as iodine in salt and niacin, vitamin B3 and iron in wheat flour and bread. ठीक है, so यहाँ पे बोला है कि जो नई डेफिशिएंसीज है, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसीजेस है, ठीक है, जैसे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, गोइटर, राइट। तो गोइटर जो है उसका भी रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि एक तो जैसे ये जो कम्युनिटीज होती है, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज होती है, वो नहीं ले सकते, तो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के थ्रू ही जो है उनको मिल पाता था वो, राइट। या फिर कैसे यानी गवर्नमेंट जो है कभी भी हमारा जो यानी विकसित करने के लिए हमेशा तत्पर होती है, राइट। तो उसी का एक पॉलिसी होता है गवर्नमेंट की कि हर तबके के लोग जो है उनकी पूरी सुविधाएं मिल सके, राइट। और उनका जो न्यूट्रिशनली जो है जो भी एडिक्वेट न्यूट्रिशन हर सबको जो है मिल सके, ठीक है, तो उनकी पॉलिसी थी। इसलिए हम देखते हैं कि रेशन कार्ड पे उनको धान वगैरह मिलता है, ठीक है, जो भी चावल, ठीक है, दाल, वो मिलता है। वही है कि हेल्थ को सुधारना है, ठीक है। तो पहले ये रेट था, तो वैसे वैसे क्या हुआ कि अभी उस एरिया में, ठीक है, अवेलेबल तो भले ही हो, ठीक है, पर वो जो पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो उनको किस तरह से जो है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि सपोज कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है, जैसे स्कर्वी है, ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, पर वहां पे बोन्स जो है कर्वी फॉर्म में आते हैं, तो वहां पे कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है, और विटामिन सी होने की वजह से वहां पे आयरन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अकेला विटामिन सी कुछ काम नहीं कर सकता, उसके लिए अदर भी न्यूट्रिएंट होना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो उस एरिया में अगर उसका प्रोडक्शन अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस है वो बेनिफिशियल उसके लिए रहेगा, ठीक है। पर अगर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो उतना सारा खाना नहीं खा सकता, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कि नहीं, उस जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए भी ये हम बोल सकते हैं कि सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है जो भी स्टेपल फूड्स है, ठीक है, तो उनमें फोर्टिफिकेशन जो है प्रकार, यानी जैसे अगर उस एरिया में रेट अगर सपोज आयोडीन ग्वाइटर का रेट ज्यादा है, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या होगा, अगर ग्वाइटर का ज्यादा है यानी आयोडीन की वहां पे कमी है, राइट, तो फिर जो है गवर्नमेंट के अंडर आने वाले पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या एक्शन लेंगी, तो ऑब्वियस है कि जो भी उनको राशन प्रोवाइड हो रहा है तो उसको फोर्टिफाइड किया जाए। फोर्टिफाइड मीन्स अभी वहां पे आयोडीन की डेफिशिएंसी, तो आयोडीन कंटेंट जो है चाहे वो दाल में हो या पल्सेस में हो, ठीक है, वो वहां पे फोर्टिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यानी वहां पे उनको आयोडीन की कमी भी नहीं होगी, और उसके साथ होने वाली जो डेफिशिएंसीज है उसको भी उसका रेट भी कम कर सके, उसको प्रिवेंट भी कर सके, तो ये जनरली पॉलिसी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रिवेलेंस है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का जो काम है, ठीक है, तो इसकी वजह से ही फोर्टिफिकेशन की तकनीक जो है वहां पे यूज होती है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, ठीक है, तो ये जनरली क्या करता है, जो भी
यानी हम बोलेंगे उस एरिया का या फिर जो भी इंडिविजुअल है उनका जो है अ, हम हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है, उनसे होने वाली डेफिशिएंसीज उनको नहीं होगी। राइट, यानी प्रीवैलेंस बोल सकते हैं कि जो भी प्रीवैलेंस है उसको रिड्यूस करेगा, जो भी रेट है डेफिशिएंसी डिसीज का वो कम करेगा। राइट, so this new science of single nutrient deficiency diseases also lead to fortification of selected staple foods with micronutrients such as iodine in salts and niacin, that is vitamin B3, and iron in wheat flour and bread. These approaches prove to be effective at reducing the prevalence of many common deficiency diseases, including goiter, iodine, xerophthalmia, that is vitamin A, rickets, vitamin D, and anemia, that is iron. Foods around the world have since been fortified with calcium, phosphorus, iron, and specific vitamins, that is A, B, C, D. ठीक है, so generally जो A, B, C, D, ठीक है, these are the vitamins. ठीक है, तो अगर विटामिन सी और डी की बात करें, ठीक है, तो these are the water soluble vitamins. ठीक है, एंड विटामिन ए एंड बी, these are the fat soluble vitamins. ठीक है, so यहाँ पे लिखा हुआ है, so foods around the world have since been fortified with calcium, phosphorus, iron and specific vitamins. तो इसकी वजह से यानी वो रेट कम करने के लिए, वो प्रिवेलेंस जो है, ठीक है, वो कम करने के लिए जनरली ये सारे विटामिन जो है ये फोर्टिफाइड किए जाते हैं। जो भी फूड सप्लीमेंट्स होंगे, ठीक है, हो सकता है कि सपोज व्हीट फ्लोर हो, उसमें आयरन का कंटेंट कम हो, ठीक है, तो वहां पे फिर वो फोर्टिफाइड किया जाता है। आपने अभी ऑयल्स भी देखे होंगे, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से फोर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, ऑयल्स में जो है कुछ कुछ ऑयल्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा रहेगा, तो ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए उसका कंटेंट जो है वो बढ़ाने के लिए जो है उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड से हम बोल सकते हैं कि फोर्टिफाइड किया जाता है। उसमें वो कंटेंट डाला जाता है कि उसका जो है वो वैल्यूज जो है वो बढ़ सके, ये ओमेगा 3 जो है कंटेंट इसका रेट वहां पे उस ऑयल में बढ़ सके, तो इस तरह से वो फोर्टिफाइड किया जाता है। तो हर एक फूड जो है, ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं कि फोर्टिफाइड किया जाता है, क्योंकि उनको डिसीज के हिसाब से भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ठीक है, उस अभी वो हो रहा है और हर एक चीज में जो है फोर्टिफिकेशन जो है वो प्रोसीजर यूज की जा रही है। ठीक? तो और जैसे मैंने कहा कि जैसे व्हीट फ्लोर, यहाँ पे आयरन बोला है, व्हीट फ्लोर में रहता है। ठीक है, पर अगर हमको एनीमिया की डेफिशिएंसी रोकनी है तो आयरन कंटेंट हमको ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फिर उस एरिया में जो है सपोज रागी नहीं मिल रहा है, पर रागी में ज्यादा होता है, पर अवेलेबिलिटी उस एरिया में नहीं है। ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे सॉरी जैसे आईसीएआर हो, एफएओ, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके साथ कॉपरेट करके जो है वहाँ उस एरिया की स्टडी करेगी। और वहां पे अगर उन्होंने देखा कि जो क्रॉप है, वीट है, ठीक है, उसमें आयरन कंटेंट बहुत कम है, पर वहां पे ज्यादा लग रहा है, तो क्या करेंगे, फिर वहां पे फोर्टिफाइड जो है वो जनरली करते हैं। राइट, तो फोर्टिफाइड वे में अगर वहां पे किया, सो उनको फिर राशनिंग की दुकान पे जो है वो वीट जो है, ठीक है, जो रेगुलर था, तो वो फोर्टिफाइड किया हुआ वहां पे मिलता है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं रेट कम करने के लिए, प्रिवेलेंस कम करने के लिए ये तकनीक यूज की जाती है। राइट, यानी उस फूड में से ज्यादा कंटेंट, फूड हो या फिर सप्लीमेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो मिल सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डेली डाइट है, राइट, तो जब हम ध्यान देंगे कि नहीं हमको दिन भर का इतना अमाउंट चाहिए, तभी वो आपको मिलेगा। नहीं तो जो है अगर आप देखोगे कि सपोज आयरन आप दिन भर का ले रहे, तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो उतना आयरन जो है आप नहीं ले पाते कभी। ठीक है, तो अगर उस एरिया का जो है रेट कम करना है उस डिफिशियंसी का, ठीक है, तो फिर जो है पॉलिसी के अंडर जो है वहाँ पे जो फूड है वो फोर्टिफाइड किया जाता है, ताकि वो कम टाइम में जो है वो रेट जो है वो कम हो सके। राइट, यानी उन लोगों की हेल्थ जो है वो सुधार सके, इस तरह से वो
गवर्नमेंट का एक्शन होता है। अभी तो सबका रेट कम हो चुका है, पर पहले बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसलिए as one of the great accidents of nutrition history, this new science and focus on single nutrient and their deficiencies coincided with the Great Depression and Second World War, a time of widespread fear of food shortages. Right? So यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री में अगर हम देखें, ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, और जो भी वर्ल्ड वॉर आज तक हुए, ठीक है, तो वहां पे फूड की वजह से जो है लाखों की जाने गई, ठीक है। फूड शॉर्टेजेस वहां पे होती है क्योंकि इतनी तबाही होती है, ठीक है, यानी कुछ भी नहीं बच पाता, राइट। तो इसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस होने की वजह से ये डेफिशिएंसी डिसीजेस है, उसका रेट उस एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, राइट। सो this led to even further emphasis on preventing deficiency diseases. For example, the first recommended dietary allowances RDA were a direct result of these concerns when the League of Nations, British Medical Association, and US government separately commissioned scientists to generate new minimum dietary requirements to be prepared for War 14 in 1941. Sorry. War in 1941. These first RDAs were announced at the National Nutrition Conference on Defense, providing new guidelines for total calories and selected nutrients, including protein, calcium, phosphorus, iron, and specific vitamin. ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो फर्स्ट आरडी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है, ठीक है, सो वो कब हम बोल सकते हैं कि उसका वो डिस्कवर हुआ, ठीक है। सो जो यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, तो तब जो है ये उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, उनके जो है साथ में जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है और उनकी यूएस गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सेपरेटली उन्होंने जो है नया जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है या फिर जो हम गाइडलाइंस कहेंगे, राइट, तो वो जनरेट किया, ठीक है। तो जब वॉर हुआ था 1941 में, राइट, सो तो फर्स्ट आरडीए जो है, ठीक है, सो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने नई गाइडलाइंस वो लाई थी, ठीक है, और जो है टोटल कैलोरी जो है, ठीक है, के लिए जो नई गाइडलाइंस थी वो उन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है। और जो जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम, आयरन, उनका वो कितने अमाउंट में चाहिए होता है उस पीरियड के दौरान, किस रेट में चाहिए, हाँ, ठीक है, सो वो तब वहां पे डिस्कवर हुआ था। So these historical events established a precedent for nutrition research and policy recommendations to focus on single nutrient and linked to specific disease states. So 1950s to 1970s, fat versus sugar and protein gap. During the next 20 to 30 years, calorie nutrition, malnutrition and specific vitamin deficiencies fell sharply in high-income countries. Because of economic development and large increases in low cost processing of staple foods fortified with minerals and vitamins. At the same time, the rising burdens of diet related non-communicable diseases began to be recognized, leading to the new research directions. Right? So attention included to areas dietary fat and sugar. ठीक है, so जो 1950s जो है, ये जो इरा था, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो भी कैलोरी माल न्यूट्रिशन है, जिसको हम जो पीएम माल न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी जो विटामिन डेफिशिएंसीज है, ठीक है, सो जनरली वो हाई इनकम कंट्रीज में, ठीक है, जनरली वहां पे दिखती है। तो यानी जो वो इकोनॉमिकली डेवलप तो हो रहे थे, ठीक है, तो जो भी वहां पे जो है प्रोडक्शन जो है वो लो कॉस्ट में वहां पे जो भी स्टेपल फूड है, ठीक है, वो वहां पे प्रोसेसिंग हो रहा था और फोर्टिफाइड भी हो रहा था, और वहां पे फोर्टिफिकेशन जो है मिनरल्स एंड विटामिन का हो रहा था। तो इसकी वजह से जो रेट जो है, ठीक
ठीक है, वहां पे कम हो गया। ठीक है, सो पर जो है फोर्टिफिकेशन होने के कारण, ठीक है, वो तो था, रेट भले ही कम हो रहा है, पर एट द सेम टाइम, ठीक है, जो डाइट रिलेटेड जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, उसका रेट भी वहां पे बढ़ रहा था। ठीक है, और एक उनको एक डायरेक्शन नया वहां पे मिला कि जो वहां पे भी फिर रिसेंट जो है वो रिसर्च होने लगी। ठीक है, और उसके बाद जो है नई नई रिसर्च जो है डाइटरी फैट और शुगर्स के ऊपर होने लगे, क्योंकि जैसे मेटा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो, ठीक है, और उसके साथ में जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है, वो भी जो है उसका भी रेट बढ़ने लगा वहां पे। ठीक है, तो इसलिए फोकस जो है डाइटरी फैट एंड शुगर पे ज्यादा होने लगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि ओबेसिटी, उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, सीवीडी जो केसेस है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और डायबिटीज, ये थ्री जो है, ठीक है, जो रिसेंटली हम देख रहे हैं इसका रेट इतना बढ़ गया है कि हर दूसरा पेशेंट जो है एक तो हार्ट का रहता है, नहीं तो डायबिटीज का रहता है। तो वही है, तो इसका रेट जो है कि ऑब्वियस वो लाइफस्टाइल तो अलग ही जो है बोल सकते हैं कि फैक्टर है। ठीक है, पर ये सारी चीजें भी मैटर करती है। तो उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो है इन्होंने जो है ये किया। तो विटामिन एंड मिनरल्स का हम तो देख चुके हैं। ठीक है, तो एक कर करके देख लेते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिएंट आपको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स और डिटेल में है आगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है। So discovery of nutrients, foods contain several chemical constituents which are known as nutrients. These include proteins, carbohydrates, fat, mineral, and vitamins. The importance of these nutrients is briefly discussed below. So first is a protein. So protein is discovered by protein was discovered by Johannes Jacob Berlesius in 1838. Proteins are among the most actively studied molecules. They are required for growth in children and maintenance of body weight in adults. Protein also provide energy to a small extent. Proteins constitute about 20% of the body weight. Body proteins are derived from the dietary proteins. The body loses continuously some quantity of proteins, and this loss has to be made up by dietary proteins. Proteins are made up of simpler chemical substances known as amino acids. The amino acids contained of proteins has been found to differ from one protein to another. The nutritional value of protein depends on its amino acid contents. Right? So जो है अमाइनो एसिड कंटेंट जो है प्रोटीन का, ठीक है, तो उसके ऊपर ही हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू वो डिपेंड करती है। ठीक है, एक जो है यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा है कि हमेशा हम जो है गेहूं व्हीट फ्लावर, ठीक है, और चावल ये हमेशा खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक में लाइसिन जो है उसकी कमी होती है, ठीक है, और एक में जो है मायोसिन की कमी होती है। तो इसकी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है उसका रेट कम होना चाहिए। ठीक है, सो किसी किसी में प्रोटीन में होता है, किसी किसी में नहीं होता। हमारे जो फूड में जो है हम लेते हैं उसमें 21 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। किसी किसी प्रोटीन में जो है 50 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमको जो है हमारे बॉडी में 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो बनते हैं, पर वो उतने हमारे लिए बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होते। ठीक है, पर जो उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोला जाता है। और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी के बाहर बनते हैं, तो इसलिए हमको डाइट के थ्रू उसकी जरूरत है। ओके, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स इन द मिड 18,000 जर्मन केमिस्ट 1800 German chemist Justus von Liebig was one of the first to recognize that the body derived energy from the oxidation of foods recently eaten, and also declared that it was carbohydrates and fats that served to fuel the oxidation, not carbon and hydrogen as Antoine Lavoisier had thought. ठीक है,
Carbohydrates are the main sources of energy for doing work. ठीक है, because carbohydrates provides energy. ठीक है, यानी जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट में से, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। उसके बाद फिर फैट और उसके बाद प्रोटीन। इसलिए हमेशा जब भी एनर्जी निकालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट रहता है, उसके बाद फैट और प्रोटीन। ये तीन चीजें, इनमें से ही एनर्जी कंटेंट हम ज्यादा निकालते हैं। So the main sources of energy for doing work. The carbohydrates commonly occurring in foods are starch, cane, sugar, that is sucrose. सुक्रोज है डाइसैकेराइड, राइट। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट है। फ्रूट शुगर दैट इज फ्रुक्टोज, ठीक है, उसको फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। एंड मिल्क शुगर, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का आपको पता होगा, तो केमिकल जो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो सेम ही है, राइट। एंड मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज, ठीक है। मिल्क और जो माल्टेड ये ग्रेन्स रहते हैं, राइट, उसमें से माल्टोज मिलता है, राइट। तो वो भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है और सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है, दीज आर द मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और जो कार्बोहाइड्रेट में से कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड वगैरह होते हैं, फाइबर बोलते हो आप, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन्स एंड गम्स, तो वो है पॉलीसैकेराइड। So about 50 to 70% of energy value, that is calorie value. Okay, the unit of calorie is kilocalorie, KCAL, right? So calorie value in the average diet is provided by carbohydrate. So about 50 to 70% of energy value, okay, is provided from carbohydrates. ठीक है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट it is carbohydrate is one of the main source of energy, right? So they are the cheapest source of energy. Hence the diet should contain adequate amounts of carbohydrates to meet a greater part of the energy needs. Fats. So oils and fats mainly serve as a source of energy. They contain some essential nutrients like essential fatty acids. Fat is essential for maintaining good health. Absence of fat leads to deficiency diseases affecting the skin known as a pyrnoderma. C.W. Skill is a Swedish chemist, discovered in 1779 that a glycerol could be obtained from olive oil by heating it with a discharge, that is lead monoxide. But it was not until about 1815 that the French chemist Michel Eugene Chevreul, that is 1718-1889, demonstrated the chemical nature of fats and oils. Minerals. The body contains about 24 minerals, all of which are derived from the diet. The important minerals are calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, magnesium, iron, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, क्लोरीन एंड जिंक, ठीक है। इसके अलावा भी जो है अदर मिनरल है, जैसे सेलेनियम है, ठीक है। सेलेनियम जो है वो फिश में से ही बहुत मिलता है। यहाँ पे इंडिया में जो है इंडिया में जो भी फिश मिलती है उसमें उसका कंटेंट सेलेनियम का बहुत कम रहता है, इसलिए जो फॉरेन कंट्रीज से है वहां से ही सबसे ज्यादा मंगाई जाती है, क्योंकि उसका जो यूज होता है अभी मेडिसिन में होने लगा है, ठीक है। तो उस तरह की मेडिसिन भी यहाँ पे जो है फॉरेन कंट्रीज में ही बनती है। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज calcium and phosphorus for formation of bones and teeth, sodium, potassium and chloride for maintaining water balance in the body, iron and copper for the formation of hemoglobin, iodine for the normal functioning of thyroid gland, ठीक है। अगर नॉर्मल फंक्शनिंग जो है थायराइड की नहीं रही, ठीक है, सिंथेसिस अगर नहीं हुआ थायराइड हार्मोन, तो उसकी वजह से गॉइटर जो है वो हो सकता है, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी कहलाई जाती है। तो यहाँ पे जो है वेरियस बॉडी फंक्शन जो है, ठीक है, मिनरल्स के वो दिए हुए हैं। तो जहाँ पे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है वो बोन्स और टीथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक है। यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे बोला गया है बोन्स के लिए, टीथ के लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो मेन कंपोनेंट है, उसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का है, राइट। पर इसके अलावा भी अदर जो जैसे आयरन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोलती आई हूँ कि हर एक विटामिन एंड मिनरल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, जो भी रिएक्शन प्रोसेस होती है उसके लिए, क्योंकि जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को एसेंशियल बोला गया है, ठीक है, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स, राइट। पर ये जो हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए जो है जो भी रिएक्शन, जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, कुछ को एंजाइम्स की जरूरत होती है, एंजाइम्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है, बी ग्रुप के विटामिन, तो वो वहां पे एज अ को एंजाइम जो है उस तरह से वो काम में आते हैं, ठीक है? तो यानी हर एक जो है विटामिन मिनरल हो या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट तो मेन होते हैं, उनकी रिएक्शन में जनरली ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होती है। तो उसके बाद में विटामिन, so foods contain certain essential chemical substances in very small amounts were called as a vitamins. About 14 different vitamins discovered. All of them are essential for normal functioning of the human body. Inadequate intake of vitamins leads to the development of deficiency diseases. Vitamins have been grouped under two heads: fat soluble vitamins such as vitamin A, D, E, and K, and water soluble vitamins, that is thiamine, B1, riboflavin, B2, niacin, pyridoxine, vitamin B6, vitamin B12, pantothenic acid, folic acid, बायोटीन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड को फोलेट भी कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह से हमने आज हिस्ट्री और डिस्कवरी देखी। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है ह्यूमन न्यूट्रिशन का, ठीक है, सो वो हम देखेंगे, ठीक है। सो डाइजेशन किस तरह से होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ पे होता है और स्टोरेज कहाँ पे होता है, ठीक? तो इस तरह से हम जो है वो पूरे फूड एंटर होने के बाद क्या क्या प्रोसेस आगे होती है तो उसको डिटेल में जानेंगे। ये तो यहाँ पे अभी हम रुक जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद हम नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं, ये MNT की क्लास है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।